I will understand related to atomic mass unit. We know that 1 AMU is nothing but 1.66 into 10 to the power of minus 28 gram we know. Along with 1 AMU is nothing but 1 unified mass also we can say, denoted by small u. Keep in mind. It is also equal to 1.66 into 10 to the power minus 4 gram, not 28, 10 to the power minus 24 gram. We have to remember 1 AMU is nothing but 1 unified mass, that is equal to 1.6 into 10 to the power of minus 24 gram, that is equal to mass of 1 nucleons. Please keep in mind this much, right? Next we will go for the atomic mass. It is also most important one, please keep in mind. Atomic mass is nothing but what? It is completely related to relative atomic mass and unified mass. How? Mass of one atom, I repeat, mass of one atom is equal to number of nucleons into mass of one nucleon. I repeat, number of nucleon is different, mass of one nucleon is different. Number of nucleon we can take it as total number of nucleons. We are aware that total number of nucleon is nothing but what? It is nothing but relative atomic mass. Therefore, atomic mass AM is nothing but RAM into U, that is relative atomic mass into unified mass. Please keep in mind, it is most important one. Done? We'll understand now with the example. We'll go for the first carbon, nitrogen, oxygen. Basic we'll understand. Alright. Now I have to find out the atomic mass of carbon. How I need to find out? Nucleons find out करना है. उसके बाद number of nucleon also we have to find out. Nucleons कैसे find करते हैं? Protons plus neutrons only. We know this much I guess. Number of neutrons present in carbon is how much? 12 minus 6. We'll get 6. Proton कितना है? Atomic number 6 only. So relative atomic mass we got, that is 6 plus 6. We got 12. Right? Relative atomic mass 6 plus 6. Why? 6 is neutron, 6 is proton. 12 into unified mass. I told now above only. We have to multiply with the unified mass. So we got atomic mass is 12U. Convert into gram. 1.6 into 10 to the power of minus 24 gram. This is how we can find out the atomic mass of carbon. Generally people used to write atomic mass is nothing. Atomic mass of carbon is 12. Is it unified or is it gram? Understand, it is 12 unified mass. Now for nitrogen we know how to find out atomic mass. Same. Nucleons find out करो. 7 neutrons है, 7 protons है. Total we got 14 total number of nucleons. That is RAM. Atomic mass is equal to RAM into unified mass. Right? So relative atomic mass how much? We have 14 gram. Not 14 gram, just 14 only. Because unit less है. U multiply करो. Now we got atomic mass of nitrogen is 14 unified mass. If I want to convert that in terms of gram, again same as it is. 1.6 multiply करो 10 to the power 25 ग्राम से. Done. Now you people take it as a homework. ऑक्सीजन का फाइंड करो कितना हो सकता है बोल के. Done. Please practice. It is also important. Atomic mass is a basic one. Keep in mind. Now we'll go for the second most important one, molecular mass. इसके बारे में ऑलरेडी बोला हूँ, फिर भी और एक बार थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ in detail. Try to understand this also. Here molecular mass, it is again related to the nucleons as well as one nucleon also. न्यूक्लियन में टोटल भी फाइंड करना रहता है, नहीं तो वन न्यूक्लियन प्रेजेंस भी इंपॉर्टेंट है. राइट? सो हियर विल गो विद द फॉर्मूला फर्स्ट. मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू टोटल न्यूक्लियॉन्स इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन. यू कीप इन माइंड, इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोलता हूँ, मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन्स वेयर एग्जाम्पल हम लोग वाटर को लेंगे. ओके, एंड यू पीपल कीप इन माइंड दैट एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस क्या है. एटम का कॉम्बिनेशन होके ही मॉलिक्यूल फॉर्म होता है. सो इंडिविजुअल एटम को फाइंड आउट करके हम लोगों को मास निकालना है. फर्स्ट हाइड्रोजन का ले लो. न्यूक्लियंस कैसे फाइंड करते हैं? न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन. 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है. राइट? इनटू अगेन यूनिफाइड मास करना है ना. मास ऑफ वन न्यूक्लियन इज नथिंग बट व्हाट? 1U. 2 इंटू हाइड्रोजन का मास कितना था? 1 ही था. राइट? इधर 2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू 1 2.
प्लस ऑक्सीजन का न्यूक्लियॉन्स कितना है 1 इंटू 8 एंड उसका मास निकाले तो 8 इंटू 2 क्यों 8 प्लस 8 प्रोटॉन 6 है सॉरी प्रोटॉन 8 है एंड न्यूट्रॉन्स भी 8 है देयरफॉर यू विल गेट 16 न्यूक्लियॉन्स देयरफॉर आई एम मेंशनिंग हियर 16 न्यूक्लियॉन राइट प्लस 1 यूनिफाइड मास नाउ मास अगर निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर निकालना है तो 2 प्लस 16 यू विल गेट 18 यूनिफाइड मास एवरीवन नो दैट वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 ओनली बट व्हाट 18 इट इज़ यूनिफाइड मास इफ यू वांट टू कन्वर्ट अगेन मल्टीप्लाई इनटू ग्राम कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई दिस 18 इंटू 1.66 इंटू 10 पावर ऑफ माइनस 624 ग्राम ओके इधर आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सर कब यूनिफाइड मास लेना है कब ग्राम लेना है आई विल एक्सप्लेन लेटर जस्ट रिमेंबर दिस मच here we have converted into gram okay when it comes to the some more molecule sodium carbonate ले लो nitrogen dioxide carbon dioxide hydrogen peroxide H2O2 है so these all are the molecule का molecular mass भी आप easily find out कर सकते हैं try to solve next one generally student used to ask sir how we got one at AMU is nothing but 1.66 into 10 to the power of minus 24 gram for that I just want to explain one more time atomic mass unit का value कैसे find out करते हैं बोल के we'll check it now okay so everyone are aware that atomic mass unit 1 AMU और उसको हम लोग बोलते हैं unified mass also I told denoted by small u 1 AMU is nothing but it's actually formula also says it's a 1 by 12th mass of 1 कार्बन 12 आइसोटोप ये बोला था मैं राइट सो 1 by 12th आई विल कीप एज इट इज इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 आइसोटोप को मैं कैन आई टेक 12 इंटू इससे पहले मास इज इक्वल टू न्यूक्लियॉन्स हमको पता है राइट टोटल न्यूक्लियॉन्स इज नथिंग बट मास ऑफ पर्टिकुलर एटम मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप का मास कितना है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स देखते थे ना हम लोग सो 12 इंटू मास ऑफ 1 एटम लिख सकता हूँ 12 इंटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियन दोनों का मीनिंग सेम ही हुआ है आई रिपीट वन मोर टाइम 12 इंटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियन नथिंग बट मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम ओनली नो 12 इंटू 1 इज नथिंग बट 12 or else directly you can write 12 also mass of 1 nucleon we left therefore 1 AMU is nothing but mass of 1 nucleons next the number of carbon atoms in 24 gram of carbon before directly going for the question we just need to understand two important point first thing number of atom or entity means what how to find out the entities ये अंडरस्टैंड पहले करने से पहले आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ इधर आप समझिए एक मेरे पास ट्रे है ट्रे का वेट है 20 kg ओके इसमें कुछ बॉल्स फिट हो सकता है कितना आई डोंट नो बट एक बॉल है 1 kg का रहता है ओके ट्रे का वेट कितना है 20 kg पकड़ सकता है वो ओके एक बॉल का वेट है 1 kg देन हाउ मेनी बॉल्स फिट इन ट्रे हाउ यू विल फाइंड आउट नंबर ऑफ बॉल्स कितना हो सकता है एक ट्रे में व्हाट यू विल डू नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ बॉल्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वन बॉल 20 kg का ट्रे अगर है तो एक बॉल में बोल रहा हूँ 1 kg 20 kg बोले तो 20 बॉल से रहता है ना सो कैन आई राइट 20 डिवाइड बाय 1 वेट ऑफ वन बॉल का कितना था 1 ही था देयरफॉर 20 by 1 हाउ मच 20 नंबर ऑफ बॉल्स विल बी देयर ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है अभी बॉल की जगह पे मैं क्या लेता हूँ आई एम टेकिंग इट एज कार्बन so number of carbon is equal to
वेट कितना दिया है वो लोग 24 दिया है. सो कैन आई राइट टोटल वेट ऑफ सैंपल डिवाइड बाय वेट ऑफ किसका, वन कार्बन एटम का. सो टोटल वेट कितना है 24 ग्राम है. एक वेट ऑफ कार्बन कितना था 12 था ना. सो कितना नंबर ऑफ कार्बन हो सकता है. बट थिंग इज हियर 12 यूनिफाइड मास था, नॉट इन ग्राम्स, राइट. ये इंपॉर्टेंट है 12 यूनिफाइड मास. अभी इफ यूनिट आर नॉट सेम you can't divide or multiply also, right. सो हमको क्या करना है, अभी इस यूनिट को सेम करना है. सेम करना है तो 24 ग्राम को वैसा ही लिखो. 12 को कैन रेट 1.66 इन 10⁻⁻24 ग्राम. अभी यूनिट सेम हुआ है. 12 वन ज़ा 12 टू ज़ा. सो 2 इंटू 1/1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन यू हैव टू रिमेंबर हियर वन पॉइंट. ये वो टोटल वैल्यू का कितना आता है 6.023 इंटू 10⁻23 आता है. You need to remember this value. So can I write 2 into 6.023 into 10⁻23? What? In terms of gram. So कितना हुआ 6.023 into 10⁻23 is nothing but Na. Therefore number of carbon atom कितना है 2 into Na, that is Avogadro number. I hope you are getting. Calculate the number of atom बोले तो कितना है 2 Na present in carbon atom. Directly also you can write, but for your understanding purpose I just explained in detail. I hope you understood. Of sodium atoms in 23 gram of sodium. आपको पहले ही बोला था कैसा फाइंड आउट करना है बोल के, डायरेक्टली फार्मूला लिखता हूँ. नंबर ऑफ एंटिटीज और नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, टोटल गिवन सैंपल कितना है 23 ग्राम डिवाइड बाई 23 यूनिफाइड मास. 23 जैसा है वैसे ही लिखो. यूनिफाइड मास को कन्वर्ट इनटू ग्राम बोले तो 1.6 इन 10⁻⁻24 ग्राम. वन यूनिफाइड मास नो, सो कन्वर्टेड इनटू ग्राम. सो 23 वन 23 वन 1 इंटू 1/1.66 इन 10⁻⁻24 ग्राम. मैं आपको याद करने के लिए बोला था ये वैल्यू कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23, नथिंग बट अवोगाड्रो नंबर. सो कितना नंबर ऑफ आइटम्स है, एंटिटीज कितना हुआ, दैट इज Na 1 Avogadro, right. This is the first answer. Second, they are asking total number of protons in 23 gram of sodium. आपको पता होना चाहिए इधर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड करते बोल के. जस्ट फार्मूला लिखता हूँ, याद रखो. टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू, आपको क्या लिखना है, नंबर ऑफ एंटिटीज और नंबर ऑफ एटम कितना था अवोगाड्रो नंबर का था. अभी आया ना आंसर इधर, राइट. इनटू protons in one entity. This is we call it as total number of protons. How can we find out, right? Number of entities Na था. प्रोटॉन इन वन एंटिटीज कितना था इधर सोडियम में, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 11 है ना. सो वी गॉट हाउ मच 11 Na. डन. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 23 ग्राम ऑफ सोडियम. सो वी गॉट 11. ये आंसर सेकेंड वन. ऑप्शन थर्ड क्या पूछ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अरे जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन रहता है उतना इलेक्ट्रॉन रहता है ना. सो नंबर ऑफ एंटिटीज कितना अवोगाड्रो नंबर. प्रोटॉन्स नहीं, अभी क्या लिखने का, इलेक्ट्रॉन्स इन वन एंटिटीज. ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है. वही है जैसा लिखा था वैसा ही है. तो नंबर ऑफ एंटिटीज इनटू प्रोटॉन्स इन वन एंटिटीज, और Na भी लिख सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ एंटिटीज हमको Na आया है. सो Na इंटू हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन. देयरफॉर आंसर इज व्हाट 11 Na. ये क्या है 11 Na इज आल्सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन.